सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। ओके, तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? क्या रिवीजन करना था हम लोगों को? पाइथन का बेसिक्स का रिवीजन करना था, इजंट इट? पाइथन बेसिक्स का हम लोगों को रिवीजन करना था। ओके, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो we were discussing about what is पाइथन टोकन्स। हमने पाइथन टोकन्स में कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसे आज ही सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ख़त्म कर लेंगे। 2 घंटे की क्लास है, 2-2.5 घंटे की, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। हमने आपको आइडेंटिफायर्स वगैरह के सारे रूल पढ़ा दिए थे। जब हम टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा आपको कितना आता है। अभी हमको ऐसी चीज़ें पूछ नहीं है, टाइम नहीं है, पहले पढ़ा के फिर उसके बाद। सबको पता है लिटरल्स कितने तरह के होते हैं? लिटरल्स किसे कहते हैं? पाइथन में कॉन्स्टेंट्स को लिटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 5, if this 5 is a literal, if you are writing n is equals to sef, so this sef is a string literal. If suppose you have bought some apples in the market, 1.5 kg, so you are writing apple is equals to 1.5. This is what? Floating point literal. So there are basically 5 types of literal in Python. So integral literals are of 4 types. All are whole numbers, but whole numbers are represented in 4 ways: decimal, octal, hexadecimal and binary. So I have taught you this all, that integral literals are having basically which has no fractional part. Decimal literal, normally whenever we save any number, that number is treated as decimal. Whenever if you want to save a binary number, you put 0p. For example, if you save a is equals to 1000, this is by default a decimal number. But if you want to store a binary number, you have to put a prefix before it. Now it become a binary number. It is a equivalent of 8. Got it? It is binary 1000, which is equivalent to 8, 2 to the power 3. I'm not saying anything, and that is the only thing. Octal, if you want to store any octal number, you have to use prefix 0o. If you want to store a hexadecimal number, prefix would be 0x. Is that clear or not? That would be the question in the paper in case. So please, you need to know. So there are various types of constants. So if somebody asks you what is literal, very simple answer: it's a constant which is not changed during the program execution. Then you change 5 to 6. Not at all. 5 remains 5 throughout the whole life. 5 means 5 unit. 5 unit of anything. It never becomes 6. So what is constant or what is literal? Literal is a constant which is fixed, whose value is fixed during program execution. What is variable? Variable is something whose value varies during program execution. Clear or not? Okay, so this is string literal, this is floating point, this is integer, this is boolean literal, this is complex literal, this is hexadecimal literal, this is exponential literal. Floating point, because now this is integers are over, at least you should know. Now the second thing, sir, real literals are also called floating point literals. Floating point means which are float. What are float? Float are those values which contains decimal point. So 3.14, 85.56, 27, that means for temperature, for percentage, for radius, we use this or not. But this is fractional form. Actually it is available in 2 forms. ये 2 forms में available है. एक form है जिसमें हम normal fractional number से store करते हैं, और एक fractional numbers वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं. ऐसे किसी नंबर को जो बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? एक तरफ आपका मैंटिसा होता है, फिर मैंटिसा के बाद आपका यहाँ पर एक ई होगा, और फिर आपका इसके बाद क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो 5.98 इंटू 10⁻24, सच अ बिग वैल्यू, दैट मीन्स 5.98 24 times zeros are there. You could not write that number on the paper and cannot do the calculation. So in order to store such a number in a Python variable, you have to use this method, exponential form. How would you write that? 5.98 e24. If this is minus, if this is minus, you would write it minus. Got it or not? Similarly, mass of electron, very small value, 9.10 10 to the power minus 31. So minus 31, sir, 9.10. E minus 31. Again, see, this E is not case sensitive, like prefix 0b0 0x. It is also not case sensitive. You could write capital, you could write also small. Is that clear? Right? Now let us see the things in a system also. The things will be very clear to you, no doubt. Let's try this. Let us try this. X is equals to 2.3.10, capital E. What is that number? 31 minus 31. Store it. Print X. Got it or not? Now, is it allowed in Python? Y is equals to 2 point. Is it allowed? Yes, it is perfectly allowed. It is assumed that it is 0 after the decimal point. समझ आ रहा है प्रियांशु? ओके, जहाँ जो चीज समझ में नहीं है वो बता सकते। ओके, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? पाइथन में स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं? सिंगल कोट्स के साथ, डबल कोट्स के साथ, ठीक है, या फिर ट्रिपल कोट्स के साथ। मालूम है ना? क्लियर है ना सब? अच्छा, सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? हमने ऐसे लिख दी, दिस इज सेफ क्लासेस। ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। इसका एक तरीका ये है, एक तरीका नीचे लिखा हुआ है। कभी कभी सेंटेंस बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन हमें उसे एक लाइन में ही लिखना है। जैसे अभी जब हम तुमको MySQL के कमांड्स पढ़ाएंगे और हम पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाएंगे तुमको, तो वहां पर तुम्हें SQL के कमांड पाइथन के प्रोग्राम में लिखने पड़ेंगे। हालांकि SQL इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मतलब वो प्रोग्राम ही होगा कि तुमको एक रिकॉर्ड अपडेट करना होगा या एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, तो कमांड तो होगा SQL का, लेकिन लिखा वो पाइथन में जाएगा। जब कोई बंदा सेव बटन प्रेस करेगा या सेव के लिए कोई ऑप्शन प्रेस करेगा, तो वो कमांड रन होगा। अब वो कमांड बड़ा लंबा होता है, आप उसको अलग अलग लाइन में नहीं लिख सकते, वो होता है एक लाइन में ही। कमांड में कोई बीच में स्लैश नहीं आ सकता। तो हम कैसे एक बहुत लंबी लाइन को 2 लाइन में ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, मल्टी लाइन से लिख नहीं सकते, मल्टी लाइन से लिखेंगे तो स्लैश एन ऐड हो जाएगा। देख रहे हो स्लैश एन यहाँ पर आ गया, यार है स्लैश एन। तो हम स्लैश एन, अगर हम मल्टी लाइन यूज करते हैं तो स्लैश एन आ जा रहा है। तो बेटर तरीका क्या, अगर हम एक लाइन में रखना चाहते हैं तो हम लाइन को बैक स्लैश से ब्रेक करेंगे, सिंगल कोट से डबल कोट्स यूज करेंगे, एक लाइन से ब्रेक करेंगे। जस्ट यू सी दिस, वेरी सिंपल। एस इज इक्वल्स टू, कोट लगाया हमने, दिस इज के बाद हम ब्रेक करना चाहते हैं, दिस इज सेफ क्लासेस। ठीक है, ये हमने ब्रेक किया, नेक्स्ट लाइन पे गए, सेफ क्लासेस, ठीक है ना, एक लाइन और ब्रेक कर दी, कंप्लीट पाइथन सॉल्यूशन, गॉट इट। और हमने इसको सिंगल कोट से बना दिया। नाउ सिंस इट सीम्स दैट इट इज रिटन इन अ 3 डिफरेंट लाइंस, बट ये अभी भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। जस्ट यू सी दिस, got it or not? As compared to this same line, s is equals to, is it visible? S is equals to, same thing, I am copying a thing, this is, ठीक है, enter save classes space enter complete Python solution, got it? Now you check S, फर्क है, स्लैश एन ऐड हो गया,
मल्टी सिंगल लाइन स्ट्रिंग नहीं है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। प्रिंट से करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अलग अलग लाइन में आई, क्यों अलग लाइन में? बिकॉज स्लैश एन इज ऑलरेडी बीन इंसर्टेड इन ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हमेशा जब भी एंटर करोगे स्लैश एन इंसर्ट हो जाएगा, तो हमेशा स्लैश, जितने स्लैश एन होंगे उतनी लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी। और एक स्लैश एन मीन्स स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस की लेंथ कितनी होती है? एक कैरेक्टर, पता है ना, एक कैरेक्टर होती है, ये एक होती है। सो दैट इज द, आई होप इट इज क्लियर। समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है? ये पूरी फाइल में भेज दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मल्टी लाइन सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्लियर। अब कोई बोलेगा सिंगल लाइन स्ट्रिंग कैसे बनेगी, इनके बीच में डिफरेंस पूछेगा, लेंथ पूछेगा तो कर लोगी, ठीक है ना। इंडेक्स मैपिंग, अब स्ट्रिंग की इंडेक्स मैपिंग क्या होती है? हर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिस्ट टपल, इन तीनों में, स्ट्रिंग लिस्ट टपल सेट, तीनों में, चारों में। सेट तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, स्ट्रिंग लिस्ट टपल कर। स्ट्रिंग लिस्ट टपल में क्या होता है? हमेशा हर कैरेक्टर की अपनी इंडेक्सिंग होती है। पहला कैरेक्टर 0 1 2 3 सबको पता है, और ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। अब अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? उस वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखो ये लिखा हुआ है ना, उस वेरिएबल का नाम, ये लिखा हुआ है उस वेरिएबल का नाम, और क्या लिखा हुआ है अंदर? क्या लिखा हुआ है? इंडेक्स। अगर मैंने लिखा नेम 0, इस वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। इस वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। नेम में क्या पड़ा है? सैफ। तो नेम 0 पे क्या मिलेगा? स्मॉल एस। नेम -2 पे क्या मिलेगा? -2 पे क्या पड़ा है? आई। नेम -5 पे क्या मिलेगा? इंडेक्स एरर, क्योंकि -5 है ही नहीं तो कहाँ से ढूंढते हो? आगे बात समझ में? लेकिन हमने तुम लोगों को स्लाइसिंग पढ़ाई थी, स्लाइसिंग रिवाइज कराई थी। स्लाइसिंग में क्या होता है? स्लाइसिंग में ऐसा नहीं होता। अगर स्लाइसिंग में इनवैलिड इंडेक्स भी पास करोगे तो वो काम करती है। हाँ, वो मैंने भी बताई, 5 मिनट में सब रिवाइज करा दूंगा। स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, जो जरूरी चीजें वो कवर अप करा रहे हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशंस है, यानी स्ट्रिंग पे आप प्लस करोगे तो कॉन्केटिनेशन होगा, एस्ट्रिक करोगे तो आप रिपीटिशन हो जाएगा उस स्ट्रिंग का, ट्रावर्सल के लिए आप फॉर यूज करोगे, मेंबरशिप इनके इन यूज करता है स्लाइसिंग में। ये 5 ऑपरेशन सबको पता होना चाहिए। यही टपल पे चलते हैं, यही लिस्ट पे चलते हैं, एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। मतलब जो बिहेव एक स्ट्रिंग में होगा सेम वही बिहेव लिस्ट में होगा। 2 लिस्ट के बीच में प्लस लगाओगे कॉन्कैट होगी, 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगाओगे कॉन्कैट होगी। एक स्ट्रिंग इनटू 5 करोगे, 5 टाइम्स वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी, यही काम लिस्ट में होगा। समझ में आ रही है? ट्रावर्सल मतलब स्ट्रिंग के एक एलिमेंट को उठाना है, फॉर लूप लगा दो, तुमने पढ़ा है ऑलरेडी, पता है ना, सब कुछ पता है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, ये तुम्हें पता है, ठीक है। सो प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड, कॉन्कैट, ये सब देख लो। सेफ प्लस क्लासेस किया, क्या बना? सेफ क्लासेस। हेलो प्लस डैश किया, डैश फ्रेंड्स, डैश मतलब गैप, वन स्पेस, हेलो स्पेस फ्रेंड्स। हेलो प्लस 10 करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्लस, जब प्लस यूज करोगे तो या तो दोनों तरफ इंटीजर हो या फिर दोनों तरफ स्ट्रिंग हो, समझ रहे हो बात? तो दैट्स व्हाई टाइप इज नॉट मैचिंग। एरर इज व्हाट? टाइप है। इसलिए एरर का टाइप भी तुम्हें पता होना चाहिए। एरर तो है कंफर्म, बट वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, कौन सी एरर है, यू शुड नो। पेपर में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये कौन सा टाइप की है, कौन सी एरर। अब ये किसी को पूछा होगा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स फुल नेम, तो ये कॉन्केटिनेशन का एग्जांपल है कि नहीं? हो गया कॉन्केटिनेशन इस लाइन का, प्रिंट कर दिया यूजर से उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ करके आपने फुल नेम प्लस कर दिया, कॉन्केट हो गया, आंसर आ गया। कोई डाउट है? क्लियर है टॉपिक? क्योंकि जब हम क्लियर कर देंगे फिर हम पूछेंगे, फिर हमें आंसर चाहिए। ये देखो रिपीटिशन, n क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा। अगर ये स्ट्रिंग है तो ये इंटीजर होगा। 2 स्ट्रिंग कभी इनटू नहीं हो सकती, 2 लिस्ट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, मतलब रिपीट नहीं हो सकती। हमेशा एक स्ट्रिंग होगी, एक कलेक्शन होगा और एक इंटीजर होगा। एक कलेक्शन मतलब एक लिस्ट हो सकता है, इंटीजर। SC इंटू 3 का मतलब 3 टाइम SC रिपीट हो जाएगा। हेलो स्पेस इंटू 2, हेलो स्पेस, ठीक है। सेफ इंटू क्लास, एरर होगी, टाइप एरर, बता दिया। क्लियर हो गया टॉपिक? आगे चले। अब देखो ये चीज मैंने पढ़ाई होगी तब तो लिस्ट में ही पढ़ाई थी। 10 + 20 लिस्ट है, एक और लिस्ट ले ली, क्या मिला? कॉन्कैट हो गई, दूसरी लिस्ट बन गई। एक लिस्ट थी इंटू 2 किया, वो लिस्ट 2 बार रिपीट होगी, ऐसे रिपीट होगी, ऐसे रिपीट होगी नहीं, ऐसे रिपीट नहीं होगी। किसी से पूछा होगा इसलिए इनकम्प्लीट लिखा होगा। ये देखो मेरे पास एक लिस्ट है 10
कॉमा 20, इसको मैंने इनटू करके 2 रख दिया, क्या आया? आई समझ में? अब वो वाला आंसर कैसे आएगा? वो आंसर ऐसे आएगा, अगर मैं लिस्ट के अंदर 10 कॉमा 20 लिखता, नेस्टेड लिस्ट होती और फिर करता इसको 2, आ रहा है समझ में? दोनों का फर्क क्लियर कर लो, पेपर में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान रखना। क्लियर है? आंसर वुड बी 10 20 10 20। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर हो गया और ये लिस्ट है, लिस्ट और इंटीजर कॉन्कैट होती नहीं है, एरर हो जाएगी। आगे बढ़ो। क्लियर हो गया दूसरा ऑपरेशन, कॉन्कैटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया। स्ट्रिंग ट्रैवर्सल क्या होता है? ट्रैवर्सल मतलब एक एक एलिमेंट एक्सेस करना, और एक्सेस करके हम उसे चेक कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसको उसका लोअर से अपर कर सकते हैं, वो हम अपनी मर्जी से। तो इस तरह की बहुत से ऑपरेशन आते हैं। स्ट्रिंग में कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, जैसे कह दें कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड a string from user, स्ट्रिंग यूजर से रीड करो एंड रिमूव ऑल द वॉवेल्स, रीड a string from user and copy it to the another variable, read a string from user and copy all uppercase to the other variable। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, या काउंट हाउ मेनी लोअर आर देयर, काउंट हाउ मेनी अपर आर देयर, काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, तो आप क्या करोगे? इस तरह के हर क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुमसे कहा जाएगा, वो पीछे अलमारी में किताबें दिख रही हैं, तुमसे कहा जाएगा सिर्फ कंप्यूटर्स वाली किताबें निकाल के लाओ, तो तुम्हें पता तो है नहीं कौन सी कंप्यूटर की किताब। तुम एक तरफ से शुरू करोगे, पहली किताब निकालो, देखो कंप्यूटर से रिलेटेड है, रख ली। दूसरी वो नहीं है, छोड़ दी। फिर तीसरी उठाई, फिर देखी हाँ ये है, रख ली। फिर मतलब समझ रहे हो क्या? इस तरह से एक एक करके आखिरी किताब तक जाओगे कि नहीं जाओगे? ये क्या किया? इसी को ट्रैवर्सल बोलते हैं। तुमको तुम्हारा नाम लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने, ये नाम लिख दिया हमने कहा इसमें कितने वॉवेल्स हैं, सुनो कितने वॉवेल्स है काउंट करके बताओ। तो वॉवेल काउंट करने के लिए तुम्हें थोड़ी पता है रन टाइम में प्रियांशु हो गई तो कोई भी नाम हो सकता है, हम कीबोर्ड से लेंगे तो कोई भी नाम हो सकता है। अब उस नाम में कितने वॉवेल है काउंट कैसे करोगे? तो तुम क्या करोगे? सबसे पहला देखो इसका तरीका क्या है बेटा, जो चीज़ पढ़ा है उसको बहुत फोकस करके पढ़ो, जो नहीं आया उसको 10 बार पूछो, ठीक है? 10 बार पूछो, लेकिन जो चीज़ पढ़ा दी जाए वो तुम्हें फिर आ जाना चाहिए, ठीक है? फॉर एक्स इन, हमने यहाँ पर लिखा, अब मुझे बताओ कि जब ये पहली बार चलता है x को क्या मिलेगा? p मिलेगा। ध्यान रखना, सबसे पहले ये p असाइन होगा किसको? x को। बोलो जाएगा? हम इसे क्या करेंगे? हम इसे प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं? अभी हम चेक करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें ट्रैवर्सल सिखा रहे हैं, छोटा प्रोग्राम बनाना सिखा रहे हैं। सर हमने x को प्रिंट कर दिया, यार अगर तुम प्रिंट कर सकते हो तो क्या तुम इसे काउंट नहीं कर सकते थे? क्या इधर पे काउंटर नहीं बढ़ा सकते थे? बढ़ गया। अब जितने कैरेक्टर इसमें हो उतनी बार ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये पता चल गया कि कितने कैरेक्टर हैं कि नहीं? बोलो, अगर इसमें सैफ पास किया होता प्रियांशु की जगह तो 4 बार बढ़ता सी, 4 हो जाती सी की वैल्यू, मतलब 4 कैरेक्टर्स आर देयर। लेकिन अब प्रियांशु के अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा तो प्रियांशु में जितने कैरेक्टर हैं काउंट कर लेगा नहीं कर लेगा? बोलो समझ आई? तुम्हारे पेस के साथ चल रहा हूँ मैं, तुम्हें जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ गया पॉइंट? पक्का ना? अच्छा अब तुम खुद बताओ कि अगर हमने हर कैरेक्टर को प्रिंट करा और हर कैरेक्टर को काउंट भी कर लिया तो टोटल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? बेटा हम लोगों ने लेन का फंक्शन बना लिया कि नहीं बना लिया? यही काम तो प्रियांशु ये लेन फंक्शन ही करता है। बोलो हमने अपना लेन बना लिया कि नहीं बना लिया? बोलो लेन का लॉजिक हुआ कि नहीं हुआ? लॉन बस तुम्हें इतना समझ आ गया। अब टीचर ने तुम्हें क्या कहा? टीचर ने तुमसे कहा कि नहीं भाई प्रियांशु तुम्हें सारे कैरेक्टर नहीं काउंट करने अपने, तुम ये देखो कि तुम्हारे नाम में या उस नाम में वॉवेल कितने हैं। अगर वो कैरेक्टर वॉवेल हो तो ही काउंट करना, सुन रहे हो ना? अगर वो कैरेक्टर वॉवेल हो तभी काउंट करना। तो प्रियांशु ने कहा अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है सर। इफ एक्स वो कैरेक्टर आ रहा है, इफ एक्स इन लगाऊंगा ए क्या होता है? वॉवेल होता है? वॉवेल होता है नहीं होता? ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। क्या मतलब हुआ इसका? एक्स इज द मेंबर ऑफ दिस। वो चेक करेगा कि क्या एक्स में पड़ा हुआ कैरेक्टर इसका मेंबर तो नहीं है,
इसका सबसेट तो नहीं है, अगर है तो बॉडी में जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज, अगर ये कैरेक्टर यहाँ पर मिलेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बॉडी में जाएगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स हो जाएगी। अब बताओ पी है यहाँ पर कहीं पर, नहीं है, तो बॉडी में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये दोनों लाइनें रन नहीं होंगी ना। उसके बाद आर पे जाएगा, आर भी वॉवेल में से नहीं होता, आई में जाएगा तो आई मैच होगा कि नहीं, आई इज द मेंबर ऑफ, आई को कैसे, इनको कैसे पढ़ेंगे, आई इज द, एक्स इज द मेंबर ऑफ दिस, द क्वेश्चन है वेदर एक्स इज द मेंबर ऑफ ए आई ओ यू, समझ आई बात, यस और नो, मतलब तुम अपने आप से इसको क्वेश्चन आंसर करोगे, हाँ यार वो तो आई है, आई है तो उसका मतलब बॉडी में जाओगे, तो वो आई प्रिंट भी कर देगा और उसको काउंट भी कर लेगा, पहला वॉवेल काउंट हुआ। अब फिल्टर समझ आया ना, इफ समझ आया ना। इसी तरीके से जब वाई में आएगा तो फॉल्स, ए में आएगा तो ट्रू, ठीक है, यू में आया तो ट्रू, तो टोटल कितने मिले, समझ आया। लूप से बाहर आके, यहाँ बाहर आकर के हमने प्रिंट कर दिया सर टोटल वॉवेल्स इज इक्वल्स टू सी। बोलो समझ आई ये चीज, क्लियर है सबको ऑनलाइन में। सी में ये काउंट आएगा कि टोटल कितने वॉवेल्स थे, अगर हमें ये क्लियर है ना, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल सीख जाओ थोड़ा बहुत। तो ट्राइवर्सल समझ आया, क्लियर है ना फंडा। अब तुमसे एक तुम्हारा टीचर कहता, तुमने स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े होंगे, इज लोअर, इज अपर, इज डिजिट, पढ़े या नहीं पढ़े, मैं भी पढ़ा दूँ, ठीक है, अभी पढ़ा देता हूँ फिर तुम्हें इस पे लेकर, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के दो तरीके हैं। स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने का एक तरीका तो है कि डायरेक्ट उससे कैरेक्टर उठाओ, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने का दूसरा तरीका है कि पोजीशन वाइज चलो। ये तो हम सीधे डायरेक्ट कैरेक्टर उठा रहे हैं, हर बार में एक एलिमेंट उठ रहा है, एक्स में आ रहा है और हम उसको चेक कर रहे हैं, तो प्रिंट एक्स दिया हुआ है तो वहाँ उससे क्या होगा, बेटा एक्स का वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोई वॉवेल होगा, अगर वो वॉवेल होगा तो उसको प्रिंट भी कर दे, ताकि वो दिखा भी देगा कि वो कौन सा कैरेक्टर था। तुम बताओगे ना काउंट 3 आया, तो वो 3 कौन से कैरेक्टर थे, अरे तुम अभी लो देखो, तुम पूछ रही हो, अभी लो देखो। कोई भी चीज़ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम समझो। इसका नाम हमने सेव कर दिया प्रियंशु। अभी मैंने यूजर से कहा मुझे एक स्ट्रिंग दो, या मैंने अभी नॉर्मल फॉर बनाया, इसको जूम करता हूँ ताकि सब कुछ नजर आए साफ साफ। फॉर एक्स इन, मैंने लिखा प्रियंशु, और हमने लिखा PRINT x, नॉर्मल c इज इक्वल्स टू c प्लस 1, ठीक है। अब c को हम इनिशियलाइज तो करेंगे, हमने c को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। लूप से बाहर आएंगे, अंदर प्रिंट आउट करोगे तो हर बार प्रिंट होगा, के अंदर तो हर बार जाएगा, तो हम बाहर जब टोटल सब पूरे कैरेक्टर चेक हो जाएंगे तब प्रिंट करेंगे टोटल लेटर्स इज इक्वल्स टू कितने हुए साहब, c। चला के देखते हैं इसको प्रियांशु के लिए, क्या आंसर आया, आ गया प्रियांशु, सारे प्रिंट ओवर, टोटल कैरेक्टर इज 9। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देखो हमने कहा नहीं साहब हमें सारे कैरेक्टर में प्रिंटिंग भी नहीं चाहिए थी, काउंटिंग भी नहीं चाहिए थी, हमको तो केवल ये देखना था कि अगर एक्स क्या हो, वॉवेल हो, तो एक्स इन AEIOU, AEIOU। अच्छा तुम इसको 10 कंडीशन लिखनी पड़ती, तुम ऐसे लिख सकते इफ x डबल इक्वल टू स्मॉल a और x डबल इक्वल टू कैपिटल A, इस तरह कितनी कंडीशन हो जाती है, 10 कैरेक्टर हैं तो 10 कंडीशन होती है, सब में और लगता। तो पाइथन ने इस काम को सिंपल कर दिया, उसने कहा मैं तुम्हें एक नया तरीका देता हूँ, इन यूज करो। तुम इस AEIOU को लिस्ट में भी ले सकते थे, तब भी चल जाता, मतलब वो तुम उसको कलेक्शन बताओगे, कंटेनर बताओगे, उस कंटेनर में तुमने किस कैरेक्टर से मैच कराना है। अब वॉवेल से मैच कराना तो सारे वॉवेल रख दो, अब कोई भी इसमें से, यानी एक्स अगर इन वॉवेल्स में से कोई भी एक वॉवेल होगा कंडीशन ट्रू, और एक बार में एक ही कैरेक्टर उठेगा, दो उठेंगे नहीं, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब जब तुम इसे चलाओगे, अब क्या होगा, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये चलेगा तब जब तुम इसको बॉडी बनाओगे, अब चलेगा, ठीक। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगा, और उसके बाद वो कैरेक्टर तो भी हो जाएगा। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, इससे क्या होगा, एक ही लाइन पे प्रिंट होगा। आया,
टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए 3। अब ये प्रोग्राम स्टैटिक हो गया, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रायांशों के लिए चलेगा। अब हमने क्या किया, अरे सर ऐसा कौन सा तरीका है, आप एक काम करो ना, कीबोर्ड से वैल्यू लो। हमने कहा नेम ले लो, इनपुट एंटर, ठीक। अब यूजर नेम देगा और हम यहाँ क्या लिख देंगे, नेम। तो ये जो भी नेम में स्ट्रिंग पड़ी होगी उस नेम के लिए चलेगा, समझ आ रहा? ठीक है, मैरी हैड अ लिटिल, कुछ भी लिख दिया मैंने, आया। टोटल लेटर्स कितने हुए 6। फंडा समझ आया तुमको? अब अगर तुमसे कोई कह देता कि ये मुझे वॉवेल नहीं काउंट करने, मुझे लोअर केस काउंट करने हैं, तो बड़ा सिंपल एक फंक्शन होता है, पूरा कोड इसी को उठा लो, पूरा कोड, कहीं कोई चेंज नहीं करना। बताओ कितने लोअर केस हैं, उठाया पूरा कोड। अब हमने तुम्हें एक चीज बताई थी, कमेंट कैसे करते हैं, पढ़ाया था, इनलाइन कमेंट, फुल लाइन कमेंट, मालूम होना चाहिए। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती। इंटरप्रेटर और कंपाइलर कमेंटेड कोड को रन नहीं करते, इग्नोर कर देते। और इसका फायदा ये है कि हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये तो कमेंट कर दिया तो कोड रन नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, तुम अगर एक नए प्रोग्रामर हो और तुम अटक जाते हो हर बार से पढ़ने में, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो तुम चाहते हो कि सर ये लाइन क्या कर रही है, इसका क्या मतलब, मैं क्या है बताओ उसकी लाइन का मतलब, कीबोर्ड से रीड कर रही हो कि नहीं? पहली लाइन क्या कर रही है, क्या कर रही है, जल्दी बताओ प्रियांशु। इनपुट लाइन क्या करती है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, क्या लाना नहीं, कीबोर्ड से वैल्यू रीड करता है। क्या लाना नहीं, कीबोर्ड से वैल्यू आता है तुम्हें, लेकिन हम बता नहीं पा रहे ना, है ना। जब भी कोई पूछेगा इनपुट फंक्शन क्या करता है, सर कीबोर्ड से वैल्यू रीड करता है, यूजर से इनपुट लेता है। मतलब समझ में? लिख लो, जो चीजें तुम्हें इस तरह की मिला कर लिख लिया करो, लाना होता है। अब यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ क्या लिखोगे, ये है देखो सिंगल लाइन कमेंट, ये है देखो सिंगल लाइन कमेंट, तुमने लिख दिया above line reads data from user, समझ में आया? ऑब्लिक KEYBOARD, समझ में आ रही है? बाकी तुम्हें पता है क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, इफ की ये लाइन क्या कर रही है, चेकिंग whether character is vowel or not। बोलो ये कर रही नहीं कर रही, कर रही नहीं कर रही। अब ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, सुनो ध्यान से। और ये कौन कैसा कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट हमेशा ट्रिपल या तो 3 अपॉस्ट्रोफीज यूज करोगे या 3 डबल कोट्स यूज करोगे, तो ये पूरा कोड रन नहीं होएगा। पूरा प्रोग्राम अगर तुम्हें रन नहीं करना और चाहते हो लिखा रहे, तो हम ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि एक एक लाइन से ही कमेंट करना है, तो हम सिंगल लाइन कमेंट हैश यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक और चीज समझो, ये सिंगल लाइन कमेंट है दोनों, लेकिन इसको बोलेंगे फुल लाइन कमेंट। ये जो लाइन लिखी है ऊपर, अबव लाइन रीड्स द डेटा फ्रॉम यूजर, ये है फुल लाइन कमेंट, है इन लाइन। इन सिंगल लाइन कमेंट इज ऑफ 2 टाइप, फुल लाइन कमेंट एंड इन लाइन कमेंट। फुल लाइन कमेंट एंड इन लाइन कमेंट। इन लाइन क्या होता है, कोड लिखने के बाद जब आप हैश लगाते हो ना, तो ये इन लाइन कमेंट कहलाएगा। यानी थोड़ा कोड लिखा है, उसके बाद आपने हैश लगा के बताया कि ये लाइन क्या कर रही है, तो ये होता है इन लाइन कमेंट। अगर आपने शुरू से ही हैश लगा दिया है, तो वो कहलाएगा फुल लाइन कमेंट, होता सिंगल लाइन है। और तीसरा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। बताइए, समझ में आ गया ना? टीचर जब बच्चों से पूछता है बताओ कमेंट कितने तरीके होते, सारे बताते हैं इन लाइन कमेंट, वो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन टीचर पूछा सिंगल लाइन कैसे लेते हो, सर हैश से, मल्टी लाइन ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स, समझ ना, हो गया। फिर वो पूछेगा तो चलो बताओ इन लाइन कमेंट क्या होता है, अरे इन लाइन कमेंट क्या होता है, और फुल लाइन कमेंट क्या होता है, ये भी नहीं मालूम, समझ रहे ना? तो इन लाइन सिंगल लाइन कमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इन लाइन, एक होता है फुल लाइन। गॉट इट? तो बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी बीच बीच में जो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। हाँ, किसी कुछ पूछना ऑनलाइन में? अब देखो इधर, ये कोड हमने चेंज किया, पूरा कोड वही है, पूरा कोड वही है। हमने यूजर से एक नाम मांगा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोअर केस काउंट कर रहे हैं, x डॉट इज लोअर, बस।
अब सारे कैरेक्टर क्या प्रिंट होंगे, टोटल लोअर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इज अपर कर देते तो सारे अपर केस कंडीशन जो तुम लिख दोगे उस हिसाब से तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। ये चला लो, नेम पूछ रहा है सैफ, ठीक है। आंसर क्या है, लोअर केस है, SAIFCL, बाकी सब कैपिटल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपर केस काउंट करने होते, यहाँ क्या करते इस, तो थोड़ा सा फंक्शन को समझना भी पड़ेगा और चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। लिख दिया मैंने सैफ क्लासेस पाइथन, लोअर केस कितने हैं, अब लोअर लिख के दे रहा है क्योंकि वो तो कोड में गलती होगी ना, मतलब तुम कर रहे हो अपर का काम और मैसेज दे रहे हो लोअर का, तो कुछ गलत नहीं हो जाए, कोड वो अंदर चेक करेगा इफ में लिखा गया है तुमने टीचर, ठीक है। तो सपोज आई एम राइटिंग SAIFCLASS, क्या आंसर है, अंडा क्लियर हो गया। इसी तरीके से कोई कहता है कितने डिजिट है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, बस अगर तुम्हें ये समझ आ गई, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो और बाकी बच्चों को भी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर रहते हैं, इस डिजिट क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि डिजिट है कि नहीं। अब हालांकि हमने वहां पर डिजिट नहीं लिखा, टोटल अपर लेटर लिख के आएगा, पर वो डिजिट ही काउंट कर रहा है, मालूम है ना। अगर हमने यहाँ लिखा सैफ खान, ये मेरा ईमेल आईडी 583@gmail.com, अब इसमें क्या होगा, कितने लेटर है, फंडा क्लियर हो गया। हमने लोअर काउंट करना सीख लिया, अपर काउंट करना सीख लिया, डिजिट काउंट करना सीख लिया, हो गया। एक फंक्शन है सर अल्फाबेट और डिजिट्स, सर अल्फाबेट सारे अल्फाबेट लोअर हो या अपर काउंट कर लो, कौन सा फंक्शन होता है, इज अल्फा। मैं तुम्हें चला के सिखा रहा हूँ, सारे में पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को स्ट्रिंग के फंक्शन, ठीक है। इज अल्फा नहीं पढ़ाया तो समझते जाओ, इज अल्फा क्या करेगा, अगर वो कैरेक्टर लोअर केस हो या अपर केस हो ट्रू देगा। अभी इज लोअर क्या है, सिर्फ लोअर में ट्रू दे रहा है, अपर में फॉल्स दे रहा है, लेकिन इज अल्फा क्या करेगा, किसी तरह का भी अल्फाबेट होगा चाहे वो लोअर हो या अपर तो ट्रू देगा। जैसे मैंने लिखा सैफ, ये मैंने स्मॉल में लिखा है, क्लासेस 2000, या मैंने स्पेस दिया 2023 लिख दिया मैंने, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू 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 तो है, मतलब क्या काउंटिंग क्या आएगी, कितने अल्फाबेट है इसमें, है ना 11 है ना, 11 हुआ, अंडा क्लियर है। लोअर इज अल्फा समझ आ गई, बोलो। लोअर केस, लोअर केस में अगर कैरेक्टर लिख रहे हो लोअर केस कैरेक्टर है, तुम्हें लोअर केस अल्फाबेट्स नहीं पता, ABCD लोअर केस और कैपिटल है ABCD, और क्या इतनी देर से खेल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है प्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये क्या प्रिंट हुआ है, ये लोअर केस में प्रिंट हो ना, कैपिटल में प्रिंट हो रहा है, ये कैपिटल ये लिखा है स्मॉल ये लिखा है, पूछा करो, टीचर तुम्हारा राइट है टीचर से क्वेश्चन पूछना, जहां अटक जाओ वहीं पूछो। अरे सर रुक जाइए, अभी इतने फंक्शन कराने के बाद पूछ रहे हो, अब समझ आ गए। हाँ, पहली हैबिट पैदा करो, टीचर से क्वेश्चन पूछोगे, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछोगे कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। हाँ हम समझ लेंगे, कब समझ लोगे, हम तुम्हें समझा रहे हैं तुमको और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं तुमसे, एहसान कर रहे हैं तुम पे क्या, तुम्हारा राइट है पूछने का यार, समझ रहे ना, तुम्हारा टाइम, और टाइम बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखना, टाइम बहुत कीमती है। फंडा क्लियर हो गया। प्रोग्रामर, हाँ ये हम लोग के लिए होता है, ये हम लोग के लिए होता है भाई, तुम अकेले थोड़ी ना सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, तुम्हारे साथ टीम में 10-15 बंदे काम कर रहे होंगे, तो 500 बंदे काम कर रहे हो पूरी टीम में, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो 1000 बंदे काम कर रहे होंगे। अब कोड, तुम्हारी टीम कोड लिख रही है, वो कोड उठा करके टेस्टर के पास भेजा गया, टेस्टर को समझ में नहीं आ रहा, कोड का टेस्टिंग होती है, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एनालिसिस डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, वो टेस्टिंग करता है, उसको मालूम होना चाहिए तुमने लिखा क्या है, और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना डेवलपर का, वो टेस्टर होता है। तुम कोड लिख के भेजो, वो टेस्टर तुमको वहां से फेल कर देगा, भेज देगा, कहते वापस भेजो उनको कोड, ये गलत कर दिया इन्होंने, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, यहाँ फेल हो गया। उसके कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं, अलग जॉब होती है, टेस्टर को ज्यादा सैलरी मिलती है डेवलपर से, जान लो, टेस्टर कम होते हैं कंपनी में, ठीक है। कई सारे टीम के ऊपर एक क्यूए बैठाया जाएगा और वो चेक, उसका काम कुछ नहीं हो, जैसे होता ना, जैसे कोई आदमी बना रहा हो कुछ और एक आदमी बैठा है सिर्फ ये देखने के तुम सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, बस सोचो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा एक चैलेंज होता है। और हम लोग को जो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, TCS के, वो क्या करते हैं, डेवलप करने के बाद ये टेस्टिंग टीम के पास जाता है पूरा कोड,
फिर वो उसको वेरीफाई करते हैं, वेरियस यूनिट टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स। तो इस तरह की टेस्टिंग होने के बाद उसको टेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे, कहीं ऐसा फेल तो नहीं हो जाएगा सॉफ्टवेयर, कहीं नेट की स्पीड खराब होगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा होगा, बहुत सारे वैसे। वो टेस्टर का काम है, वो सिनेरियो डेवलप करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का ना, जो भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा अपने कोड को कि तुमने ये लाइन क्यों लिखी है, कोई वेरिएबल तुमने क्यों लिया, तुम उसे कैसे लिख सकते हो। पाइथन तो हर चीज को ही, या तो डिफाइन हो या वो कीवर्ड हो, तो हर चीज तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते ना। जैसे तुम्हें लिखना है दिस कोड हैज बीन डेवलप्ड बाय तोयश कुशवाहा, दिस कोड हैज बीन डेवलप्ड बाय द प्रियांशु, ठीक है ना, एंड दिस कोड इज डूइंग दिस। अरे ये करते हैं लड़के, तुम ही जैसे लड़के करेंगे आगे जाकर के। ये बताओ, इंडिया की टीसीएस में जॉब करने कौन जाएगा अगले 10 साल में? वही बच्चे तो जाएंगे जो आज 12th कर रहे हैं। अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 साल की, 4 साल का बीटेक या एमसीए करने के बाद, ये 11-12 कंप्लीट करने के बाद जाएंगे कि नहीं जाएंगे जॉब करने 5-6 साल 7 साल बाद? तुम्ही लोगों में से बच्चे जाएंगे, आसमान से नहीं गिरेंगे वो सारे स्टूडेंट। वो सब अभी कॉलेजेस में तुम्हारे लेवल में पढ़ रहे हो, कहो तुम ही लोग जा रहे हो, बाद में मुझे फोन करके बताओ सर मेरा ओरेकल में हो गया, सर मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। तो हो जाएगा, अगर तुम ठान लोगे तो हो जाएगा, समझ रहे हो। और उसका पहली सीढ़ी पाइथन है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। आने वाले टाइम पे पाइथन से बढ़िया लैंग्वेज कुछ नहीं है, और आने वाले सबसे बूम है, बूम पे लैंग्वेज है, समझ लो। कुछ भी करोगे इसी लैंग्वेज से सब चल रहा है, ठीक है। जावा अभी कोई बड़ा चैलेंज किया, आर एक लैंग्वेज है डेटा एनालिसिस की, बिग डेटा की, उसको भी चैलेंज कर रही है। सबसे बड़ी, मतलब आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करनी है तो पाइथन है, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग करनी है तो पाइथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो पाइथन है, मशीन लर्निंग है तो पाइथन है, वेबसाइट बनानी है तो पाइथन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी तो कीवी उसका एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कीवी है, KIVY करके एक प्लेटफॉर्म है उसका, ये का नाम है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, KIVY, कीवी उसका प्लेटफॉर्म है। लेकिन बहुत सारी फील्ड है भाई, पाइथन पढ़ा हुआ बंदा बेकार नहीं बैठ सकता। इसका एक फ्रेमवर्क है डी जैंगो, कुछ लोग जैंगो बोलते हैं, कुछ लोग डी जैंगो बोलते हैं। वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, फ्लास्क पे वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, बनाओ इन पे, जॉब तो मिल ही जाएगी, कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये है ना कि जब तुम्हें बेसिक्स नहीं आते हो तो फिर दिक्कत है। बेसिक्स फिर बीटेक वाले बेसिक्स पढ़ते हैं, बीटेक वालों को भी नहीं आता, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उनको ना एक साथ 5-6 सब्जेक्ट उठा के डाल देते हैं, फैकल्टी पढ़ा नहीं रही होती, पीपीटी आगे टीचर सुना जाता है, वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आया सर के ऊपर से निकल गए, समझ में, कोई समझाता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, यूट्यूब से पढ़ते रहते। नौकरी तो करनी है, लाख रुपए तो फंसा दिए हैं बीटेक में, अपना करियर तो अपने ही हाथ में। ये तो मोहल्ले वाले कहेंगे लड़का कुछ कर नहीं रहा, यहीं बैठा हुआ, जब से करते हैं ना रिश्तेदार, और रिश्तेदार आएंगे तो वो सब तुम्हें अपने पर झेलना पड़ेगा वो सब। इसलिए मन लगा के पढ़ो, और इसको अपना करियर बना सकते हो आने वाले टाइम पे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया तुमको। तो स्ट्रिंग में मैंने तुम्हें काफी चीजें अभी क्लियर कर दी, नहीं क्लियर कर दी, ठीक है। ट्रैवर्सल से लेके आया था, एक तरह का ट्रैवर्सल ये होता है, एक तरह का ट्रैवर्सल होता है इंडेक्स बेस्ड। इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल देखो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल थ्रू इंडेक्स, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन हम लेंथ के ऊपर चलेंगे। देखो अगर हमें टेस्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो एक तरीका तो है कि हम फॉर लूप लगा के टी निकालें, फिर ई निकालें, फिर एस निकालें, फिर टी। एक तरीका हम T0 लिखें तो क्या टी नहीं प्रिंट होगा, है ना, प्रिंट होगा। अगर हम T1 लिखेंगे तो ये वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा, अगर हम T2 लिखेंगे तो ये कैरेक्टर प्रिंट होगा, अगर हम T3 लिखेंगे तो ये कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो एक सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही प्रियांशु सर? सिमेट्री बन रही है। 0 1 2 3 लूप कहाँ यूज होते हैं? पाइथन में लूप कहाँ यूज होते हैं? पाइथन में क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें क्वेश्चन पेपर में थोड़ी लिख के आएगा कि इसको लूप से करना है। कैसे पता चलता है कि किसी प्रोग्राम को लूप से करना है? जब एक ही काम बार बार करना हो अप टू द डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स तो हम लूप से करते हैं। जैसे तुमसे किसी ने कहा अपना नाम 5 बार प्रिंट करो, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 5 प्रिंट लिखो या एक प्रिंट लिख करके उसको फॉर के अंदर बंद कर दो या वाइल में बंद कर दो। स्मार्ट तरीका क्या है? फॉर या वाइल का, यही चीज तरीका है। अब कर क्या रहा है बंदा? 4 प्रिंट लिख रहा है और काम एक ही कर रहा है। इसमें सिमेट्री है, ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है। यार ऐसा क्यों नहीं करते तुम? एक फॉर लूप लिखो, एक फॉर लूप लिखो, ये लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज। तुम्हें क्या चाहिए? 0 1 2 3 4 चाहिए। अगर तुम रेंज में अगर 4 पास करते तो बोलो ये सेट मिलता कि नहीं मिलता? 0 1 2 3 का मिलता नहीं मिलता? अब ये 4 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर हैं? हाँ जी। तो आपने कहा सर रेंज के अंदर
लेंथ पास कर देते हैं, उस वर्ड की जितनी लेंथ होगी अपने आप उतना ही इंडेक्स नंबर हमें मिल जाएंगे 0 से। बोलो समझ आई नहीं आई? तो रेंज ऑफ लेन ऑफ जो भी स्ट्रिंग है वो हमें पास कर दे। क्लियर हुआ फंडा? यहाँ टी है तो हम टी पास कर दें, यहाँ टी है टी पास कर दें। बात आ गई समझ में? देखो लिखा हुआ है, लेन ऑफ टी समझ आया, रेंज ऑफ लेन ऑफ टी समझ आया। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब सुनो, स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका तुम्हें ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मजा आएगी। सर ये ज्यादातर कैसे पता चलेगा हमको एलिमेंट वाइज ट्रैवर्स करना है या हमको पोजीशन वाइज इंडेक्स वाइज ट्रैवर्स करना है? तुम जैसे चाहो वैसे ट्रैवर्स करो, लेकिन अगर तुमको ये कहा जाए कि एक स्ट्रिंग इनपुट करो, हाँ ये एक लिस्ट में कोई नंबर है, लिस्ट में तुम्हें किसी ने, अक्सर ये चीज लिस्ट के लिए ज्यादा ट्राई करते हैं क्योंकि लिस्ट में इन प्लेस मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो किसी ने तुमसे कहा 10 20 30 5 20 नहीं लिखा, ये 20 28 लिखा हुआ है, नहीं 28 नहीं लिखा, हाँ 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 29 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 10 लिखा हुआ, 29 35 30 33 ये नंबर लिखा हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन मिल रहा है? समझ आ रहा है कुछ? तुमसे अगर कोई ये कहे, प्लीज सुनना, मैं डायरेक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्या तुम इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कर सकते हो लूप के थ्रू? कर सकते हो ना? क्या कोड होगा बताओ? रेंज क्यों? एल लगाओ ना डायरेक्ट, एल लगाओ ना डायरेक्ट। अभी हमको तो एलिमेंट प्रिंट करने हैं ना, हमने थोड़ी तुमसे कहा कि तुम इसे मॉडिफाई कर दो। तो ये काम तो आसान सबसे बढ़िया यही है। क्यों रेंज? रेंज के बाद है लेन, लेन तो तामझाम हो जाएगा ना लंबा। जितना जरूरत उतना, रटने वाला कोई काम नहीं। जैसे हम बहुत बार C=0 यूज करते हैं या कोई वेरिएबल यूज करते हैं, सर ने लिखा था इसलिए हमको शुरू में लिखना नहीं, जब तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट आएगी तब तुम उसे लिखो। अगर तुम ऐसे कर रहे हो कि पहले सर ने sum=0 कर दिया था तो हमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो गलत है, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। जब तुम्हें जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो उसको वहां डिक्लेयर करो। कोई जरूरी नहीं सर ने सम लिया था तुम सी ले लो। एक काउंटर चाहिए जिसमें वैल्यू काउंट करके रखनी है, ठीक है ना? और हमसे पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। अब मुझे बताओ प्रिंट आई करोगे तो बोलो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी इसकी, ठीक, वेरी गुड। अब हम तुमसे कह रहे हैं, अब सुनना जरा ध्यान से, हम तुमसे कह रहे हैं हर एलिमेंट को चेक करो, अगर वो एलिमेंट इवन है उसको ट्वाइस कर दो, और अगर वो एलिमेंट ऑड है उसको थ्राइस कर दो, उसको चेंज कर दो, अंदर इन प्लेस मॉडिफिकेशन करो। और एक अब रुकना प्लीज, एल, अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ ये 10 है, इवन है, तुम्हारे सामने दिख रहा है, कैसे एक्सेस होगा ये? L0 को 2 से मल्टीप्लाई करके वापस कहाँ रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तुम्हें समझ में आया ये? L0 का मतलब क्या हुआ? अभी हम ये नहीं कह रहे, हमें मालूम है कि 10 है, वो तो जब रन टाइम में चलाएंगे तब तो हम हर एलिमेंट चेक करेंगे। अभी पता है कि 10 है, तो इवन नंबर को क्या करना था? इवन नंबर उठाएंगे कैसे उसकी पोजीशन से? देखो जरूरत पड़ी पोजीशन की, जब भी तुम्हें उसको इन प्लेस मतलब उसको रिप्लेस करना हो ना लिस्ट में खास तौर पे, तो तुम क्या यूज करोगे? इंडेक्स वाला तरीका, जब तुम्हें चेंज करना है। वरना तुम सिर्फ तुम्हें उठाना है, सिर्फ तुम्हें एक्सेस करना है, कंपेयर करना है, चेंज नहीं करना, उस जगह पे बदलाव नहीं करना है, पोजीशन पे उस इंडेक्स पे जाके चेंजेस नहीं करने हैं। समझ रहे हो ना? तो क्या तुम्हें कहीं और से, तुम्हें कहीं और ख्यालों में गुम था जब आप बता रहे थे? हाँ हाँ, प्रियांशु सिंह, ठीक है ना? समझ आ रही है बात? प्लीज इसको समझने की कोशिश करो। अब इसी तरह भी कहता है ये ऑड है, हालांकि तो प्राइम भी है पर ऑड है। अब ये नंबर ऑड है तो क्या करना है? इसको थ्राइस मल्टीप्लाई करना, तो तुम अपने आप 1 लिखोगे ना, तभी तो क्योंकि तुम्हें इसको हटाना है, इस जगह पर वैल्यू में वैल्यू लानी है, तुम्हें लिखना पड़ेगा जो भी वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी है उस पे 3 का मल्टीप्लाई करके वापस उससे इंडेक्स नंबर 1 पे सेव कर दो। एक नई वैल्यू बनेगी, और जब ये नई वैल्यू बनेगी तो 1 पे आके सेव हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन में भी स्नेहा, है ना? मतलब ये है कि मैं बहुत स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ ताकि ये कि छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें क्लियर हो जाए, फिर बड़ी चीजें भी क्लियर हो जाए। तो अब हमने जब तुम्हें क्वेश्चन दिया है ना, अब तुम इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल भी तुम कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या था?
रीड अ नंबर इन लिस्ट एंड रिप्लेस and if number note down the question in the copy. If number is even, ठीक है ना, then make it twice, otherwise twice. हो गया क्वेश्चन। अब कीबोर्ड से वैल्यू कैसे रीड करें सर, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। लिस्ट के लिए कीबोर्ड से, और बोला है लिस्ट में वैल्यू लेनी है, और पढ़ा स्ट्रिंग रहा था देखो मैं तुम्हें, क्योंकि तुम ऑलरेडी स्ट्रिंग और लिस्ट ना आपस में जैसी है, बस लिस्ट म्यूटेबल है वो इम्यूटेबल। क्या करें सर, हमें तो आता नहीं। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कीबोर्ड से अगर तुम्हें कभी भी कलेक्शन में वैल्यू लेनी हो, क्या यूज करो, ईवल। ये पता है ईवल कैसे काम करता है? या चली गई लग रहा, अच्छा नहीं पता। देखो पता है, अगर हम इस प्रोग्राम को बिना ईवल से बनाए ना, तो ये बड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब इसमें 3-4 लाइन का एक एक्स्ट्रा लूप बन जाएगा। मैंने लिख दिया इनपुट, मैं भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल, एंटर लिस्ट। एक बात ध्यान रखना कि ईवल फंक्शन क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे तुम्हें अगर कोई नंबर इंटीजर इनपुट करना होता है तो तुम इंट से कास्ट करते हो, फ्लोट लेना होता तो तुम फ्लोट से कास्ट करते हो, लेते हो ना, क्यों भाई, लेते हो ना। तो इसी तरीके से हम एक कॉमन फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसका नाम है ईवल। ये अपने आप इंटीजर को इंटीजर में बदल देगा, फ्लोट को फ्लोट में बदल देगा, बूलियन को बूलियन में बदल देगा, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में बदल देगा। यानी अंदर स्ट्रिंग में जो फॉर्मेट होगा, अपने आप उस फॉर्मेट से उसके ओरिजिनल डेटा टाइप में चेंज कर देगा, सिर्फ अकेले। देखो मैं करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक, ये मैंने यहाँ पर लिया, बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान से देखना। मैंने लिखा ईवल, लेकिन ईवल ध्यान रखना हमेशा कैसी वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। मैंने लिखा 2.5, जब तुम एंटर करोगे ना ये न्यूमेरिकल 2.5 मिलेगा तुम्हें। देखो कोट्स नहीं लगे ना, आ गई फ्लोट, आ गई वैल्यू, फ्लोट आ गई। इसी तरीके से तुम लिखो ईवल, और ये कुछ भी ले सकता है, लिस्ट ले सकता है, डिक्शनरी ले सकता है, टपल ले सकता है, एक ही लाइन। सबसे बढ़िया चीज है, हमने यूजर से कह दिया इनपुट एंटर रोल नंबर, यूजर से कह दिया रोल नंबर दो, और हमने आर नाम के वेरिएबल में इसको सेव करने की कोशिश करी, और हमने एंटर किया। अब ये रोल नंबर पूछ रहा है, हमने लिखा रोल नंबर 50। अब आर चेक करो, हमने एंड से तो कास्ट किया नहीं, ईवल ने अपने आप कास्ट कर दिया। एक और चीज देखो, तुम लोगों ने छोटे छोटे कलम ने तुम लोग कुछ क्वेश्चन दिए थे छोटे छोटे सॉल्व करने के लिए। अब देखो तुम्हें किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया, तुमको दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया 2 + 5.6 डिवाइड बाई 2 $4, ये क्वेश्चन दे दिया, ये $3 नंबर दे दिया, बड़ा कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे लिए, करना भी नहीं सॉल्व, तुम करना नहीं, क्या इसको बंद करो ईवल में, स्ट्रिंग के अंदर बंद करो, इसको ईवल में डालो। घर पे बता रहा हूँ शॉर्टकट, किसी क्वेश्चन का अगर आउटपुट चेक करना है, आया है सही कि नहीं आया, तो ईवल के अंदर बंद करो पूरी इक्वेशन और एंटर कर दो। समझ में आ गई? ये अपने आप उसका स्ट्रिंग हटा देगा, न्यूमेरिक को सॉल्व करेगा और आंसर दे देगा। तो ये कॉमन फंक्शन है, हर तरह के डेटा टाइप को, मतलब हर तरह के फॉर्मेट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ये लिस्ट भी ले लेगा, जैसे किसी ने तुमसे कहा लिस्ट एंटर करनी है, हमने लिखा L = हमने लिख दिया ईवल, और यहाँ पर कुछ ना लिखोगे तो भी चलेगा, इनपुट लेकिन देना पड़ेगा, इनपुट से स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, ठीक है। एंटर लिस्ट इज इक्वल टू, ये हमने दे दिया। अब देखो ओपनिंग लगाओ, लेकिन लिस्ट है तो लिस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा तुमको। 10, 29, ठीक है, 44, 37, 2 या 3 जो भी है, बंद करो, देखो पूरी लिस्ट हो गई, एंटर करो, सेव हो गई, एल दबाओ, लिस्ट आ गई। एक लाइन में लिस्ट ले ली तुमने,
और यही प्रोग्राम लिस्ट का बड़ा लंबा है। सबसे पहले यूजर से पूछो एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ, फिर यूजर से पूछो उसे लिस्ट में कितने एलिमेंट चाहिए, उसका साइज लो, साइज टाइम लूप चलाओ, फिर एल डॉट अपेंड करो। इतना लंबा प्रोग्राम हो गया और ये काम तुमने एक लाइन में कर लिया। मतलब मैं तुमसे अगर ये कहूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ, तुमसे अगर मैं कहूँ कि तुम्हें लिस्ट में सिर्फ नंबर लेना है तो तुम उसका प्रोग्राम बनाओगे कायदे से। एक लिस्ट लोगे, फिर उस लिस्ट की साइज क्या होगी, तुम यूजर से साइज पूछोगे, इंटर इंटीजर इनपुट या इवल इनपुट। अब सबको समझ में आएगा इवल कैसे काम करता है। एंटर साइज ऑफ लिस्ट। साइज ऑफ लिस्ट मतलब कितने एलिमेंट होंगे उसमें। साइज ऑफ लिस्ट या कुछ भी ले लो, लेंथ ऑफ लिस्ट जो भी है। यूजर से साइज मांगोगे, साइज आएगी, जितनी साइज आई होगी उतनी बार लूप चलाओगे। फॉर आई इन उतनी रेंज के लिए चलाओगे, नहीं रहो रेंज ऑफ साइज चलाओगे, बोलो चलाओगे नहीं चलाओगे। अगर उसने कहा मुझे पांच एलिमेंट सेव करने हैं तो 5 बार बॉडी चलनी चाहिए। उसने कहा मुझे 4 एलिमेंट एंटर करने हैं तो 4 बार बॉडी चलनी चाहिए। बॉडी चलेगी तो क्या लेगी, एल डॉट यूजर से पहले कहेगी हाँ नंबर दो, कौन सा नंबर तुम्हें सेव करना है। वो तुमसे ये भी पूछेगी अच्छा अब लिस्ट में क्या नंबर इनपुट करना वो इनपुट करो। इतना लंबा प्रोग्राम हो रहा है। मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कायदे से, ये नहीं कि मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ा के जल्दी से टपका दिया। एंटर एलिमेंट, एंटर लिस्ट एलिमेंट, ये हमने कह दिया उसको, ये यूजर ने एक लिस्ट एलिमेंट दिया होगा, ये तो मैसेज है। और चाहो तो तुम इसको इनपुट से ले सकती हो, लेकिन इनपुट से ले लो ठीक है। और इनपुट से लेने के बाद इंटीजर में लोगी ना, इंटीजर क्लोज करो भाई इसको, ये हमने क्लोज कर दिया। वापस आओ, इक्वल टू लगाओ, मान लो किस एलिमेंट में लिया, मान लो हमने ई में लिया, बोलो वो एलिमेंट आ गया। एक एलिमेंट यूजर से मांगा है, कुछ किया नहीं है, लिस्ट में कैसे जाएगा। एल डॉट अपेंड होता है, बताओ भाई, एल डॉट अपेंड होता है। और जब ये लूप चल जाएगा तब तुम्हारे पास फाइनली वो लिस्ट आएगी, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल्स टू क्या, कॉमा एल, बोलो कॉमा एल। देखो चला के देखो इसको, इतना बड़ा प्रोग्राम बनेगा तुम्हारा। चलाओ, पूछेगा साइज, सारा में 4 एलिमेंट चाहिए। कौन से 4 एलिमेंट चाहिए, पहला एलिमेंट 10, 35, 37, 29। अब इतना बड़ा प्रोग्राम तुमने ईवल से एक बार में कर लिया था, तो बताओ ईवल आसान पड़ेगा या आसान पड़ेगा। समझ आके तो हमने तुम्हें दोनों तरीके सिखा दिया, तुम्हें जो तरीका समझ में आए तुम उसको फॉलो करो, ठीक है। कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, या तुम्हें हो सकता है कोड मिल जाए तो तुम्हें समझ में तो आ जाए कोड क्या कर रहा है, तो ये वो कोड हो गया। क्लियर हुआ। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, जिसको जो नोट चाहिए वहां से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखने का टाइम दूंगा तो फिर तुम्हारा लिखने में टाइम लगा जाएगा ना, वहां से तुम अपने हिसाब से उठा लेना। क्लियर है फंडा। तो हाँ, तो पेजो पढ़ा रहा था तुम लोगों को, अब समझ आया। तो हमने लिस्ट में नंबर ले लिया। अब वो कहता है कि अगर वो नंबर इवन है तो हमें, मान लो लिस्ट में क्या आया होगा, मान लो उसने 10 20 दे दिया, या 10 39 दे दिया, या 37 दे दिया, 29 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ दे, क्या मालूम है। अब जितने एलिमेंट पड़े हैं उतनी बार तुम बॉडी में जाओ, हर एक एलिमेंट को देखो एक एक करके। पहले से एलिमेंट को देखोगे कि अरे ये इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसी जगह पे सेव करो, आया ना। अब जब तुम्हें वापस लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना हो, ओवरराइट करना हो, तो भैया तुमको यूज करना ही पड़ेगा रेंज ऑफ लेन ऑफ एल, इंडेक्स वाइज चलना पड़ेगा। आई समझ में। तो सर कभी इंडेक्स वाइज, कभी एलिमेंट, पता ही नहीं है कब क्या लिखना था, बुक में पता नहीं, सर पढ़ा देते हैं मालूम नहीं है। अब समझ आ गया। तो अगर तुम्हें सिर्फ चेकिंग करनी है, कंटेनर में चेंज नहीं करने हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज कर। लेकिन अगर तुम्हें चेंज करने हैं तो इंडेक्स मालूम होनी चाहिए, और इंडेक्स निकलेगी यहाँ से, ठीक। समझ आई। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेंज में ये राइटिंग थोड़ी गंदी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, रेंज ऑफ लेन ऑफ एल, ऐसे लिखेंगे, लेन उठेगी, इफ आई जीरो लिखेंगे क्या, नहीं भाई आई जीरो थोड़ी लिखेंगे। ये आई क्या है, ये क्या आया होगा, ये इंडेक्स है या वैल्यू, ये इंडेक्स है या वैल्यू। वेरी गुड। तो हम इसको पोजीशन लिखें। जो चीज तुम स्टोर कर रहे हो ना, तुम वो वेरिएबल लो, एक्स वाई जेड आई जे के में मत खेला करो कभी भी। तुम जैसे इंडेक्स उठा रहे हो तो इंडेक्स लिख लो, अगर तुम कैरेक्टर उठा रहे हो तो सी एच लिख लो,
अगर तुम वर्ड उठा रहे हो तो वर्ड लिख लो, अगर तुम लाइन उठा रहे हो तो लाइन लिख लो। इससे तो ना तुम्हें समझ आ जाता है ये लाइन है, अब तुम्हें समझ आ जाएगा ये पोजीशन है। और अगर हम यहाँ सी एच लिख देंगे तो तुम्हारा जो माइंड है ना, तुमको ये बार बार मैसेज देगा ये कैरेक्टर है, पर तो नहीं नहीं कैरेक्टर नहीं है, ये पोजीशन है। समझ रहे? तो तुम्हें जैसे होता है ना, व्हाइट को ब्लू बोलो, ब्लू को व्हाइट, तो तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे उसमें। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये कंफ्यूज होने से बचने के लिए ना हम लोग ये चीज यूज करते हैं। पोजीशन है तो पोजीशन कहाँ जाएगी, एल ऑफ, ऐसी जाएगी ना, L0 L1 L2 होगी। क्लियर है? रफ का रफ समझा रहा हूँ, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितने हैं, 0 1 2 3 4, ये होगा ना, हो गया तुम्हारा। पहली बार में क्या उठेगा, तो 0 आएगा। तो अगर वो क्या करेगा, अब वो ऐसे थोड़ी नहीं, क्या करोगे, तुमने क्या देखा, ये L0 पे पड़ी वैल्यू, ये L0 पे पड़ी वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ये L0 पे पड़ी वैल्यू तुमने चेक किया, क्या, अगर क्या हो वो इवन हो, अगर वो इवन हो डबल इक्वल टू 0 हो, क्या होना चाहिए, इस L पोजीशन की वैल्यू को क्या कर दोगे, ट्वाइस L L POS, L POS एस्ट्रिक 2 इज इक्वल टू L POS। और बहुत ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग इट, मेकिंग क्वाइट सिंपल एंड इजी। एक बार जब तुम लोग अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर तो तुम लोग खुद ही करो, दैट्स नॉट अ कंडीशन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, अदरवाइज के लिए मैंने बताया था कि थ्राइस करना है उसको, LPOS पे थ्राइस, पहले ये चलेगा, पहले ये वाला पोर्शन चलेगा और जो नई वैल्यू होगी इस पोजीशन पर। क्लियर हो गया, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब बाहर आकर के प्रिंट कर दो एक बार फिर से, एल प्रिंट न्यू, न्यू लिस्ट या मॉडिफाइड लिस्ट, न्यू लिस्ट तो नहीं है, दैट इज अ मॉडिफाइड लिस्ट, मॉडिफाइड लिस्ट, मॉडिफाइड लिस्ट इज इक्वल टू एल, बस खत्म हो गया। डन है? करके देखें इसको ना, ताकि तुम्हें ना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और ये कि हाँ सर ने हमें करके भी दिखा दिया। ये हम नहीं कर रहे, इट्स वेरी लेंथी, और भैया बड़ा लंबा है, करना करेंगे। L is equals to eval input, enter लिस्ट, यूजर से लिस्ट मांगी हमने डायरेक्ट साइज के चक्कर में। फिर फॉर पोजीशन इन रेंज ऑफ लेन ऑफ एल, क्या करेंगे, इफ एल POS क्या हो, मॉड्यूलो 2 है, क्या करना, तो क्या करना, L POS is equal to L POS एस्ट्रिक, ठीक है। और मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ, लेफ्ट में आओ, एल्स में आ जाओ, एल्स में आ जाओ, मैंने पेस्ट कर दो, लूप से बाहर आ जाओ, प्रिंट मॉडिफाइड लिस्ट इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। अब चला के दिखाते हैं इसको, रन करते हैं, यूजर से मांग रहे हैं लिस्ट, देखो 10 35 28 22, और एक और ले ले लो 41 या 47, अब आप एंटर करो, ठीक है। तो इसने कर दिया, इवन है तो ट्वाइस कर दिया, और ऑड है तो थ्राइस कर दिया। क्लियर है फंडा, दैट्स इट। तो हमें ये सब, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आउटपुट के भी आते हैं, तुम इसको जब समझ पाओगे, तुम अपना कोड लिखना सीख गए, फिर जो कोड लिखा होगा तो तुम समझ जाओगे फॉर कैसे चल रहा है, इफ से क्या होगा, एल से क्या होगा। और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फिर पढ़ाना भी जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें थ्योरी कवर करानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाओ। ईवल की डेफिनेशन ये है कि ईवल इज अ कास्टिंग फंक्शन विच इज यूज्ड टू विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग, मैं लिखवा देता हूँ, it is a casting function
which accepts string, yeah, which accept value in string format and convert the number to its corresponding डेटा टाइप। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने ईवल के अंदर कोट्स में लिखा 2.5, क्योंकि सबको पता है ये स्ट्रिंग है, इसका ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप, लेकिन फॉर्मेट फ्लोट का है। अगर हम इसे कैच करेंगे ना, और अगर हम टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ एक्स, तो हमें आंसर क्या आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा फ्लोट। ये क्यों? क्योंकि इसने जब एक्स को ट्रांसफर किया तो इसने इसको क्या वैल्यू ट्रांसफर करी? 2.5, ना कि 2.5 कोट्स के साथ। क्लियर हो गई? इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा, आप लिस्ट लोगे, लिस्ट में भेज देगा। ठीक है, तो जब आप लिखते हो ना x इज इक्वल्स टू ईवल इनपुट एंटर लिस्ट, और आपने सिर्फ 3 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई और उसको पास किया। ठीक है, अब आपने लिखा और आप चेक करना चाहते हो करता कैसे, और आपने यहाँ लिखा है कि प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो पता है कैसे काम करेगा। सपोज करो मैं इसका आउटपुट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जब ये रन हुआ तो जब ये लाइन चली ना एंटर लिस्ट वाली, तो मैंने यहाँ पर क्या इनपुट किया? जो भी इनपुट किया वो किस में बंद होगा? ऑब्वियसली डबल कोट्स में बंद होगा। लिखने की जरूरत नहीं होती वो डबल कोट्स। जब आप यहाँ लिखोगे ना, क्योंकि आपने लिखा 10 और 20, ठीक, इंटरनली ये जो नंबर है ना, इंटरनली मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ, इंटरनली लिस्ट इज एनक्लोज्ड इन कोट्स। होगा ही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू पहुंची ईवल के पास? ईवल के पास पहुंची एक लिस्ट जो 10 और 20 तो है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल कोट्स लगे हुए हैं। तो ईवल ने इसको स्ट्रिंग हटा दिया और इसको ओरिजिनल लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप टाइप चेक करोगे तो आंसर आएगा लिस्ट, क्लास इज इक्वल्स टू लिस्ट। ठीक है, वो इसी तरह देता है, अलग अलग, आइडल में अलग तरह से देता है और जुपिटर में अलग देगा, स्पाइडर में अलग देगा, सबका अलग देगा। तो कुल मिला के ये समझ लो कि लिस्ट आएगी। ये समझ लो स्ट्रिंग नहीं है, लिस्ट लेता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है लिस्ट। ईवल फंक्शन एक कॉमन फंक्शन है जो वैल्यू लेता है किसी भी तरह, पर फॉर्मेट सही होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? होप दैट यहाँ तक क्लियर है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर कि नहीं? हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबी है क्लास, पर इट्स गुड, नॉट बैड। चले हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। और अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये चेक करता है तुम्हारी एल वैल्यू इस आर वैल्यू में प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये एल वैल्यू आर वैल्यू में प्रेजेंट है तो ये क्या रिटर्न करेगा? और अगर ये एल वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इस बिहेव को जस्ट रिवर्स करने के लिए हम नॉट लगा देते हैं। अब हमने जैसे यहाँ लगा दिया टेस्ट लिखा है और हम कह रहे हैं कैपिटल टी इज नॉट द मेंबर ऑफ टी, कैपिटल टी इज नॉट द मेंबर ऑफ टी। तो क्या मतलब हुआ? हाँ भाई, कैपिटल टी इज नॉट अ मेंबर, इज ट्रू। आंसर क्या है? ट्रू आएगा। वाई में क्या स्टोर होगा? कैपिटल टी। गॉट इट और नॉट? समझ आ रही है चीज? फाइन, चले आगे।
क्लियर हो गया? कोई पूछेगा व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, सिंपल आंसर सर, मेंबरशिप ऑपरेटर लुक्स द लेफ्ट साइड वैल्यू इनसाइड द राइट साइड, गॉट इट और नॉट? मैं इसको लिख देता हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर looks for L वैल्यू इसीलिए मैंने लिखा, उसका टेक्निकल नेम L वैल्यू होता है, ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वैल्यू L वैल्यू, राइट साइड वैल्यू R वैल्यू। मेंबरशिप ऑपरेटर लुक्स फॉर L वैल्यू इनसाइड R वैल्यू, ठीक है? इफ L वैल्यू is present in R वैल्यू, मतलब प्रेजेंट का मतलब पूरा पैटर्न मिलना चाहिए, देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा भाई, जब मैं ट्रू और फॉल्स लिखता हूँ तो टी और एफ कैपिटल लिखता हूँ क्योंकि ये कीवर्ड होते हैं पाइथन में। जावा में लोअर में ही लिखेगा, सी प्लस प्लस में लोअर में, तब जावा में तो क्लियर हो गया। यहाँ तक आगे बढ़ो जल्दी से। कमेंट समझ आ गई? कमेंट्स हम पढ़ा चुके हैं, नोट्स हैं। ये कि सर नोट्स कहाँ होंगे? कमेंटेड सेक्शन इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर इंटरप्रेटर, कमेंटेड आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोग्राम एंड व्हाट द कोड इज डूइंग। ये वो चीज भाई, कोड क्या कर रहा है भाई, 50 लोगों की टीम है, हर आदमी अपने हिसाब से कोड लिख रहा है, अगले को समझ भी नहीं आएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ती है कोड। हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हर चीज, तो वो कीवर्ड और आइडेंटिफायर के ट्रीट करता है, हम क्या वेरिएबल डिक्लेयर करते रहेंगे? नहीं। तो हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं इस लाइन से ये होगा, इस वेरिएबल का ये यूज है, इस मॉड्यूल को हमने इसलिए बनाया है, तो हर चीज लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन किस में बंद होगी? कोड्स में, मतलब या तो ट्रिपल कोड्स में या फिर हैश में, तो सिंगल लाइन है फिर समझ आ गई, और वो कोड रन नहीं होगा। क्लियर हो गई? फिर सिंगल लाइन कमेंट दो तरह का होता है, इनलाइन और फुल लाइन, हमने तुम्हें समझा दिया। क्लियर है टॉपिक? आगे बढ़ो। तो पाइथन रिवीजन 2 क्लियर का मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब स्लाइसिंग आती है, स्लाइसिंग तो पता है तुम लोगों को, पक्का आता है ना? और उसको आती है स्लाइसिंग पीछे भाई साहब? स्लाइसिंग का एक ट्यूटोरियल है, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसमें लंबा पड़ेगा ना स्लाइसिंग। इधर रिया को भी आती है, स्नेहा तुम्हें आती है? रिया, स्नेहा, यहाँ कितने लोगों को आती है? आती है तुम्हें नहीं आती? तुम्हें अलग से बताइए, थोड़ा सा रुकना। हाँ ठीक है, मैं नहीं बता, जो छोड़ दे, ठीक है, ये सेक्शन छोड़ दे, तो फिर ये पूरा अपने आप में एक सेक्शन है पूरा। अगर इसमें लग गए तो फिर ये पूरा हम डिवीजन से रुक जाएंगे। हम इसे बाद में बता देंगे, डेफिनेटली हम बाद में बता के चैनल पे भी डाल देंगे इसका वीडियो, और अभी फिलहाल इसको रोक देंगे। बूलियन लिटरल क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। पाइथन में ट्रू का अपना एक मतलब है। क्या मतलब है? कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, नॉन एम्प्टी वैल्यू ट्रू है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और नॉन एम्प्टी। स्ट्रिंग है, उस पर कुछ लिखा है, कुछ पास है, ट्रू है। स्ट्रिंग एम्प्टी है, फॉल्स है। लिस्ट एम्प्टी है, फॉल्स है। जीरो है, फॉल्स है। समझ आ गया? इसके अलावा सब देखो। और ये इंटरनली ट्रू का मतलब इंटीजर में कास्ट करोगे 1 बन जाएगा, फ्लोट में करोगे 1.0, और फॉल्स जो होता है वो 0 या फिर 0 डन। समझ आ गई? तो कोई तुमसे पूछे ला कल व्हाट इज ट्रू इन पाइथन, आपका आंसर क्या होगा? एनी नॉन जीरो। हाँ, यू शुड नो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ये मालूम होना चाहिए। ये सब वाइवा की पॉइंट तैयार करा रहा हूँ कि वाइवा इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ 1 डे और 1 नाइट, यू आर डूइंग कांस्टेंट स्टडी। वो कांस्टेंट स्टडी का रिजल्ट होता है वाइवा में, फिर तुम्हें घबराहट नहीं होगी। अरे पूछ लो यार, कहीं से पूछ लो, कहाँ से पूछोगे, मैं तो फंडे सारे क्लियर है। लिटरल सर कांस्टेंट होता है? अच्छा कांस्टेंट होता है, क्यों चेंज नहीं होती? एक्स की वैल्यू 5 है, फिर हमने एक्स की वैल्यू 6 कर दी, चेंज कहाँ हो रही? चेंज सर 5 रहेगी, 6 रहेगी, वैल्यू एक्स की बदली है, 5 थोड़ी 6 हो गया। यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो टू टॉक टू योर टीचर कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है या तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। नहीं सर, आई एम नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज, आई नो व्हाट इज द रियल फैक्ट, व्हाट इट और नॉट। ये सारी चीजें क्लियर। तो कहेगा अच्छा तो फिर ये क्या है? क्या है ये? एक्स क्या है? एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो फिर 6 क्या है? और से बोला करो, वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट में साइन कर सकते हो। तुम बताओ एक्स क्या है?
एक्स वेरिएबल है सर, वेरिएबल सिर्फ एक लेबल होता है, आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल है वेरिएबल, आई समझ में? कांस्टेंट नहीं है। क्या एक्स की जगह तुम कोई और लेबल नहीं ले सकते? क्या एक्स, अगर मैंने एक्स इक्वल टू 5 लिखा तो क्या हुआ होगा, रैम पे एक बॉक्स बना होगा, उसमें यानी रैम पर एक स्पेस ऑक्यूपाई हुआ होगा जिसमें 5 स्टोर होगा, मतलब उसकी बाइनरी स्टोर होगी या हेक्साडेसिमल व्हाटसोएवर, और इस लोकेशन का नाम हमारी आसानी के लिए क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन इंटरनली सारा काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो आईडी से करेगी, और ये आईडी ऑटो जनरेटेड होती है, ये ऑटो मतलब इट इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट, इट इज अनप्रेडिक्टेबल ना, वो तो रैंडम है, तो रैंडमली कहीं पे तुम आए थे अभी लैब, अभी क्लास में आए हो, तुमने अपनी एक रैंडमली जगह बना ली, तुम वहां बैठ गए, या तुम घर से प्री प्लान करके आए थे मैं इस कोने पे इस जगह बैठूंगा, ठीक है ना, कुछ नहीं था, दैट इज ऑल, दैट इज रैंडम सिलेक्शन। तो ये यहाँ पर भी रैंडम सिलेक्शन है, वो रैंडम सिलेक्शन जिस एड्रेस का होगा उस वो एड्रेस मिल गया। अब अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा, रुको जरा समझो बात को। हाँ इधर देखा करो जब पढ़ा रहे, यहाँ देखो, समझे ना, तुम्हें गर्दन इधर उधर बहुत हिल रही, बार बार ये देख रहा हूँ, कहीं भी देखते हो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम वहां नहीं होते, तुम कहीं और हो, लग रहा है कि यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना है क्लास में। अब ये कांस्टेंट है सर, ये वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि क्या x में 5 आ सकता है? क्या मैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखूंगा तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, वेरी कर गई कि नहीं कर गई x की वैल्यू, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सक्यूशन। कोई तुमसे यही पूछ ले जब वेरिएबल क्यों बोलते हो, कांस्टेंट बोलो, सर नहीं सर हमारी किताब में लिखा था तो कांस्टेंट नहीं बोलते वेरिएबल बोलते हैं, तो किताब में लिखा है, किताब में लिखा थोड़ी होता है, समझ गए ना बात को? तो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले 5 थी, अब वेरी करके 6 हो गई, और इस लोकेशन पे 6 नहीं होगी, इंटीजर म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है, तो ये क्या करेगा, एक नई लोकेशन पे 6 को क्रिएट करेगा, और ये x यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, 6 को पॉइंट करेगा, नई लोकेशन पॉइंट करेगा, बात आ गई समझ में कि नहीं आ रही? हाँ, तो इसीलिए x एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू पहले 5 थी फिर चेंज हो गई। वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सक्यूशन, कांस्टेंट विल नेवर चेंज, 5 5 ही रहेगा भाई, 5 6 थोड़ी है। हम ये थोड़ी है आज तुम लोग बैठे हो, ठीक है, कल हम कह देंगे 100 लोग बैठे हैं, बैठे इतना ही है, हम कह रहे नहीं 100 लोग बैठे हैं, अच्छा कैसे कह रहे हो आप सब, तो कांस्टेंट है, जो 100 है वो 100 है, जो 3 है वो 3 है, 10 है तो 10 है। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया? ओके, अब ये बूलियन लगा रहे हैं, हाँ बेटा, कोई कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं होता पाइथन में, इसी तरह डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट का कोई अलग तरीका नहीं डिक्लेयर करने का, किसी वेरिएबल को हम कांस्टेंट बनाएंगे कि कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता, ये सब सी और जावा में चलता है, यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो आप सीधे लिखो वैल्यू, समझ में आई नहीं आई, ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, क्लियर? बाकी जो होगा मैं बता दूँ या, हाँ समझ आया, तुमने कहीं पढ़ा? हाँ हाँ नहीं होता, अभी तक तो नहीं होता, ठीक है, अभी तक तो नहीं होता, जावा में होता है फाइनल से होता है ना, और सी में होता है कौन से, मैंने भी काफ़ी स्टडी करी उसके बाद, अभी तक तो मुझे मिला नहीं किसी बुक में, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट तो है ही है कि 3.14 अगर हमने कोई कांस्टेंट लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, और सी में होता है हैश डिफाइन से, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स यूज होते हैं, होता नहीं होता, वो लेते हैं पाई, मैं पढ़ा होगा क्यों, पढ़ा है ना, तो ये सब होता है, ये सब, फिर C++ आ गया तो उन्होंने कॉन्स्ट यूज करना शुरू कर दिया, जावा वाले आए तो उन्होंने फाइनल यूज करना शुरू कर दिया, तो ये सब अलग अलग, लेकिन पाइथन में इस तरह का कोई कांस्टेंट कभी अभी तक मैंने अपने लेवल में पढ़ा भी नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगता है भी, ठीक है, समझ में आइए? अब इनके आंसर तुम अपने आप निकाल लो, इसका आंसर क्या आएगा बताओ प्रियांशु, और इसका आंसर नन भी फॉल्स होता है, नन भी फॉल्स होता है, ये क्या है फॉल्स, ये क्या है फॉल्स, ये क्या है फॉल्स, ये क्या है, सब फॉल्स है, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स है, नहीं ये फॉल्स नहीं है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर 4 कैरेक्टर पड़े हैं, वो नन नहीं देखेगा इसको, वो देखेगा कि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग खाली नहीं है, खाली चीज नहीं, खाली जो खाली नहीं है वो ट्रू है, ओके, दिस इज ऑल आर फॉल्स एक्सेप्ट एंड लास्ट सेकंड लास्ट ऑल्सो, ये जीरो नहीं है, ये स्ट्रिंग जीरो है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर ट्रू,
क्लियर हो गई? अब यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए तो ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो सब कुछ है, मार्क्स चले जाएंगे, है ना? इसलिए पढ़ लो। तो बूलियन लिटरल क्या है? नन रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू, नन। अब हम बात क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इस पे, मतलब अब हम बात कर रहे हैं नन लिटरल पे। व्हाट इज नन लिटरल? नन लिटरल क्या है? नन लिटरल, none represents absence of value. It is not equivalent to zero if data type is numeric and not equivalent to blank if specified data type is string. तो पूछेगा नन क्या होता है? सर एब्सेंस ऑफ वैल्यू। एब्सेंस ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ? सर ये अपने आप में ये नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, नथिंग, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे ऑफर चलता है, 5% ऑफ है, 10% ऑफ है, तो 0% ऑफ भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे ऑफ नहीं चलता। कभी झाड़ू पे ऑफ चलता है, कभी पोछे पे ऑफ चलता है, हाँ बिस्किट के पैकेट पे ऑफ चल सकता है, ठीक है ना? वॉशिंग पाउडर पे ऑफ चल सकता है, हार्पिक पे ऑफ चल सकता है, गॉट इट और नॉट? कोल्ड ड्रिंक पे ऑफ चल सकता है, लेकिन मतलब 5% ऑफ है, कुछ कम कर दिए हैं प्राइस, लेकिन क्या इरेजर पे ऑफ चलेगा? तो वहां क्या लिखोगे जब उसका डेटाबेस बनेगा ना? तो जो ऑफर वाला कॉलम है ना, या ऑफ वाला कॉलम, ऑफर चल रहा है 5%, किसी में 5 लिखा, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 60, तो इरेजर जब आएगा वहां क्या लिखा? नन। रूम आएगी वहां क्या होगा? नन होगा। बात समझ में आ रही हो? तो ये हो एब्सेंस ऑफ वैल्यू का मतलब ये। क्लियर हो गई चीज? तो इसलिए ना तो ये जीरो के बराबर है और ना ही ये ब्लैंक स्पेस के बराबर है। गॉट इट? समझ आएगा चीज? टॉपिक इज ओवर। अब हम 10 मिनट का ब्रेक, 10-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है?